awesome just reading about her. Pankaj, I invite you to please tell us a little more about yourself. And also, there's something about being a Toastmaster. What does that mean? We would love to understand it from you. So, over to you, Pankaj. Thank you, Menuji, for your wonderful words. And good evening, everyone present over here. My appropriate salutations to everyone, because I don't know that whosoever is present, and so who are maybe some people are elder than me, some may be younger than me. So my appropriate salutations to everyone. And thank you to Mavin just for giving me this opportunity. And for myself, as you said, I'm Dr. Pankaj, and I have done my doctorate in philosophy from Jabalpur University. And for 10 years around, I was just teaching in a B.Ed college. And then after that, I started my small venture named Oceanic EduZone, and there I am just working as an edupreneur. Mostly my area of concern is just to work through informal education, because schools and colleges providing formal education, but my area of concern is mostly to guiding the youth, navigating the youth through informal education. So I am using fingerprint analysis, I'm using NLP, I'm using meditation, I'm using hypnosis. So all these things I'm just using to navigate the people. And at present, I am associated with Osho Fragrance also as a meditation facilitator, and with Midna Global also as their training faculty. So this is all about me. And as Nupurji already said, that today's topic is Naad, the universal sound. As those who are attending regularly this spiritual festival of Mavin, they must be noticing that we have started our journey from the outer periphery. Healing was there, body was there, then listening, connecting, and slowly, gradually, we are coming towards, inside, inner periphery. So a beautiful journey just from outer to inner. So now today is the day we are just going to start. We are touching that particular arena where we are just going to connect with ourselves, and some glimpses of that world also, which we call maybe the soul or the another world or the Paramatma or the Atma, whatever it is, whatever, maybe any religion, any scripture, whatever we call it. So today, whatever we are just going to discuss, it is just like a bridge between the outer and the inner. If we are standing on this bridge of Naad, we can go there also and we can go there also. Both the sides we can, So today, mostly I have taken the things from the scriptures or from our basic, Sanskrit texts. So I would like to, So I would like to just, I think, okay, my voice is equal. Am I audible properly? Okay. At my end, it was echoing. Okay, so just give me a minute. Some disturbances there. Thank you. So I have chosen the medium because most of my text is from the old scriptures or from the Sanskrit text. So I will just, tell everything in Hindi, because I just, would love to narrate in that particular language whenever I am just saying something spiritual, because I feel connected. So Osho is my master. So first of all, just bowing down him, and my living masters, Osho Shailendraji and Amrit Priyaji, they are from Osho Fragrance. Whatever I have learned from them. So now, Naad, our today's topic, Naad, the universal sound. Okay, whenever we heard the word sound, means
Dhwani. Okay, dhwani. And dhwani means, as even now I am talking, my palate, my tongue, there is a pressure. Okay, वहां पर एक प्रेशर है, एक स्ट्राइक है. तो हमेशा आप देखेंगे ध्वनि जब भी पैदा होती है तो उसमें कोई ना कोई चोट होती है, उसे हम कहते हैं आहत नाद. ओके, इन म्यूजिक, जो लोग म्यूजिक से जुड़े हैं दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल कि दो तरह के नाद होते हैं, आहत नाद एंड अनाहत नाद. आहत नाद इज ऑलवेज मीन्स दो चीजें टकरा रही हैं, लाइक क्लैपिंग. Okay, two hands are needed. Like my voice, palate and tongue, both are just striking with each other. Even you are, maybe you are speaking on mic, so mic and your voice. So दो चीजों की चोट होगी, दो चीजों की टकराहट होगी तो नाद होगा. और उसी नाद से फिर धीरे धीरे सुर, सरगम, ताल, पूरा संगीत पैदा हुआ. संगीत जब भी आप किसी गुरु के पास सीखने जाते हैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, नाद. और अगर हम भाषा की बात करें, भर्तहरि के बारे में अगर आपने सुना होगा तो भर्तहरि जो है एक बहुत ग्रामेट्रेरियन हम उन्हें कहेंगे, व्याकरण शास्त्री हुए हैं जिन्होंने स्फोटवाद का सिद्धांत दिया. तो ये जो सारे आप देख रहे हैं स्वर और व्यंजन जो हैं हमारे हिंदी लिपि के, उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर रिसर्च करके ये चीज कही कि ये जो सारे शब्द हैं ये नाद से आ रहे हैं. ओरिजिन इज नाद. आपने हिंदी में अगर बहुत नर्सरी क्लासेस में आप जाएं, काखा गा को डिवाइड करें तो यू मस्ट बी गेटिंग कि एक सा है जो तालु को छूकर आएगा, कुछ शब्द हैं जो खाली लिप्स को टच करके आएंगे, कुछ शब्द हैं जो जीभ बिल्कुल पीछे से, पैलेट से, अंग, आहा, कुछ उच्चारण बिल्कुल पीछे से होंगे, कुछ उच्चारण दांत से होंगे, श, त, ढ. तो पूरा जो आपका माउथ जो इनर सिस्टम है आप देखेंगे कहां पर किस तरह की चोट होगी और कैसा स्वर और कैसा व्यंजन आएगा. तो जितना संगीत है उसका ओरिजिन भी नाद को माना जाता है, और जितनी व्याकरण है, जितना संस्कृत का जो रूट, जो श्लोकों के उच्चारण है, उसका पूरा रूट जो उसका ओरिजिन भी है वो नाद से माना जाता है. बट अब कुछ जो जिन लोगों ने साधना की, जिन्होंने अपने अंदर थोड़ा सा गहराई में जाकर प्रयोग किए, उन्होंने पाया कि एक और तरह का नाद है जिसको हम अनाहत नाद कहते हैं. अनाहत नाद मतलब इसमें कहीं कोई चोट नहीं हो रही है, दो चीजें नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, और बस वहां एक साउंड है. और उसको हमने कहा कि ये यूनिवर्सल साउंड है, ऑल परवेडिंग, सभी जगह है, सभी जगह पर ये व्याप्त है. और इवन हमारे हिंदू शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में, ब्रह्म सूत्र में इस ओम की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है. बहुत छोटे से सेशन में इस सब को पिरोना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको सही तरह से प्रस्तुत कर पाऊं. तो हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ईशावास्य है, मंडूक उपनिषद है, कठोपनिषद है, ये सब इस बात पर एग्री करते हैं, इस बात की शिक्षा हमें देते हैं कि प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, एक ध्वनि हुई, एक विस्फोट हुआ और उससे धीरे 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 आकार बना. तो पहले सब कुछ निराकार था और निराकार से आकार आया. तो वो जो निराकार है, वो जो जिससे वो जो साउंड आया, उस साउंड को हिंदुओं ने कहा ओम. तो ओम कोई वर्ड नहीं है, कोई सिलेबल नहीं है, कोई शब्द नहीं है, किसी भाषा का कोई पार्ट नहीं है. ओम इज जस्ट लाइक अ, उ, मा, केवल ध्वनि है. और इस ध्वनि से फिर पूरा ब्रह्मांड बना. तो अगर ये जितने मैंने उपनिषद के नाम यहाँ पर दिए हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो आप इन उपनिषद को पढ़ सकते हैं. और यहाँ पर बहुत गहराई में ये चीज दी है कि अनाहत नाद जो है पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, और एक ऐसा साउंड है जो बिना किसी चोट के, बिना किसी टकराहट के हर समय हो रहा है.
उसको कहा गया नाद। और यही सृष्टि का आधार है, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे वेद और उपनिषद ये बात कह रहे हैं। बहुत ज्यादा व्याख्या में हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय की भी गरिमा है, सो पॉसिटी ऑफ टाइम इज देयर। तो जिसे हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं, प्रस्थानत्रयी मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक 3 स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एंड उपनिषद्स, वी कॉल इट प्रस्थानत्रयी। तो प्रस्थानत्रयी में भी अगर आप भगवद गीता की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव मीन्स कि मैं वही ओंकार हूं, मैं वही बेसिक यूनिवर्सल साउंड हूं। जब मैं फॉर्मलेस होता हूं तो आई एम दैट, तस्य वाचका प्रणव। वेदम पवित्र ओंकारम, वेदों में जो पवित्र ओंकार है वो मैं ही हूं। तो गीता में बहुत जगह पर ये कंसर्न आता है जहां पर भगवान कृष्ण खुद को ओंकार स्वरूप कह रहे हैं। और उपनिषदों में भी बहुत जगह पर ये कंटेक्स्ट आता है, ये रेफरेंस आता है। अगर आप में से बहुत लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बहुत फेमस बुक है। और अगर इसका हिंदी वर्जन, आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑल्सो, करीब 212 और 230 पेज के बिटवीन वो अपना एक एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वहां पर वो कहते हैं कि मेरी नाभि से निकल रही आभा सृष्टि के प्रत्येक भाग में फैल रही थी, और नाद ब्रह्म की ओंकार ध्वनि, प्रणव झंकार या सृष्टि के स्पंदन को मैं स्पष्ट सुन पा रहा था। तो योगियों ने, संतों ने बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में इस नाद को, अनाहत नाद को अनुभव किया है। और इवन अगर आप महर्षि पतंजलि के ग्रंथ उठाएंगे तो वहां पर भी आपको ये रेफरेंस मिलता है। वो कहते हैं कि ध्यान में सुनाई पड़ने वाली विश्व ध्वनि ओम ईश्वर का पर्याय है। महर्षि पतंजलि ये बात कह रहे हैं। तो यहां पर मैंने रेफरेंस भी दिया है, आप इन टेक्स्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं दैट व्हाट दे आर सेइंग। तो इसलिए ओम ही सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। इवन हमारा रामायण में, गीता में जो अकार, उकार, अ, उ और मां की बहुत सुंदर व्याख्या आती है। तो रामायण में भी आप देखेंगे, बालकांड में जाएंगे शुरुआती उसमें, तो बालकांड में आता है राम से बड़ा राम का नाम। तो किसको किसको वो राम से भी बड़ा कह रहे हैं? पूरी दुनिया राम को पूछती है, तो राम से बड़ा राम का नाम, तो व्हाट इज दैट नाम? तो जितने भी संत हैं उन्होंने इस यूनिवर्सल साउंड को, इस जो ये जो पूरे ब्रह्म की जो ध्वनि है, इसको उन्होंने बहुत अलग अलग नाउन दिए, अलग अलग संज्ञा दी। किसी ने कहा नाम, किसी ने कहा सतनाम, किसी ने कहा धुर की बाणी, किसी ने कहा सच्ची बाणी, किसी ने कहा लोगोस। तो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग स्क्रिप्चर्स ने इस साउंड को अलग अलग नाम दे दिए। बट बेसिक उसके पीछे यही है कि ये यूनिवर्सल साउंड जो है ऑल परवेडिंग है, हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो अगर ये ब्रह्मांड में है तो हमारे भीतर भी है, और हम ध्यान की गहरी अवस्था में हम इससे जुड़ सकते हैं। ये तो मैंने हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात की। अभी थोड़ा सा अगर हम सिखिज्म की तरफ चले, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि नॉट इवन अ सिंगल पेज इज देयर, नॉट इवन अ सिंगल पेज कि जिसमें नाम की या इस यूनिवर्सल साउंड की महिमा नहीं है। दे आर सेइंग कि तू निर्गुण, तू सरगुण, निरंकार आकार आप सरगुण। मीन्स कि ये पहले यही चीज निराकार होती है, फिर एक ध्वनि होती है, साउंड होता है, और यही चीज आकार ले लेती। बहुत सुंदर तरीके से। और ये गुरु ग्रंथ साहब के मैंने रेफरेंस भी दिए हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड लेटर ऑन यू कैन जस्ट रेफर दीज थिंग्स। तो निर्गुण आप सरगुण भी वही कह रहे हैं, वही है, निर्गुण सगुण दोनों वही है। कभी आकार ले लेता है और कभी जो है वो निराकार में चला जाता है। और ये जो मैंने यहाँ देखेंगे आप, फ्लो चार्ट है एक बहुत सुंदर, कि निरंकार पहले कुछ नहीं, फॉर्मलेस है, शेपलेस है, कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे एक अंकार,
मीन्स वो एक साउंड हुआ, एक ध्वनि हुई, एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से धीरे धीरे जो है फॉर्मलेसनेस जो है फॉर्म में आई, और फिर फॉर्म से धीरे धीरे मैटर बना, मैटर से धीरे धीरे ये पूरा संसार बना, ये पूरी धरती बनी, प्लैनेट्स बने, सृष्टि बनी। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये सिखिज्म में भी, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी ये चीज है कि जो कुछ भी बना वो एक साउंड से बना, एक ध्वनि से बना, एक नाद से सब कुछ पैदा हुआ। ठीक, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने कहा ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम वी कैन कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग। तो जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, नाम के धारे सगल जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमृत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आगास पताल। मीन्स नाम से ही सब है, इसी यूनिवर्सल साउंड से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्द से ही आकाश बना, शब्द से ही धरती बनी, शब्द से ही सब तरफ प्रकाश है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी सभी संतों ने, सभी ने इस बात को यहाँ पर उजागर किया है। देन पेज, अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब के पेज 436 पे आप जाएंगे तो बहुत सुंदर ये आपको इशारा मिलता है, अनहद वाजे रुंझुन करे राम, कि ये जो अनहद हमारे अंदर बज रहा है, ये जो अनाहत नाद बज रहा है, ये क्या है? ये राम ही रुंझुन कर रहा है। मीन्स जो पूरी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ये आपके अंदर रेजोनेट हो रही है। हाउ टू कनेक्ट विद दैट? और वो धीरे धीरे आप मेडिटेशन से, साधना से उससे कनेक्ट हो सकते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर जी के बारे में हम सब जानते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार बजे। गगन गुफा मीन्स जब हम आंख बंद करते हैं, अंदर जाते हैं, बंद आंखों के सामने हमारा जो ये जो पूरा एरिया है, ये गगन गुफा संतों ने इसको कहा है। और जब आप यहाँ पर ठहरते हैं तो बिन बाजा झनकार बजे, अंदर कोई बाजा नहीं है पर एक झनकार बज रही है। दैट इज, वो किसकी उपमा है? नाद की उपमा है, कि अंदर कुछ गूंज रहा है, अंदर एक नाद है। तो अगर आप कबीर वाणी पढ़ेंगे, ग्रंथ साहब पढ़ेंगे, रामायण उठाएंगे, उपनिषद उठाएंगे, तो बहुत सुंदर व्याख्या नाद के बारे में हर जगह पर। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, राधा स्वामी मत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राधा स्वामी ब्यास एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बुक्स में भी ये रेफरेंस आता है। कहते हैं, अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजे, मृदंग बजे, ओंकार मंडल बंधा मेघनाथ गर्जन। कि ये जो शंख है, घंटा है, ये सारी चीजें हमारे अंदर ही बज रही हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही इनसे कनेक्ट होना है। तो राधा स्वामी मत जो ब्यास हैं, उनके बुक्स में भी बहुत सुंदर हमें हर जगह पर नाद के रेफरेंस मिलते हैं। फिर मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं। मीराबाई जी जो थी, मोस्टली हम कहते हैं कि कृष्ण की भक्त थी, बट अगर आप उनका बहुत फेमस पद आप सुनेंगे, जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। She was a Krishna devotee, but she is saying, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन इज बेसिकली इसी नाद को कहा जा रहा है। तो जहां भी राम, राम नाम, सतनाम, अनहद, धुन, वाणी, इस तरह के नाउन, इस तरह के जहां पर भी रेफरेंसेस हैं, मीन्स ये अनहद नाद के रेफरेंसेस। तो मीरा जी जो हैं, उन्होंने भी जब पहले तो वो बहुत ज्यादा भक्ति वाले उनके पद हैं जो ज्यादा समाज में प्रचलित हैं, पर जब वो अपने गुरु रविदास जी से मिली और उसके बाद उन्होंने साधना जब की, और जो उनके साधना से रिलेटेड कुछ गुजराती में पद हैं, वो गुजराती का जो पद है वो क्लियर इंडिकेशन देता है कि टुवर्ड्स नाद। तो जैसे मीरा कह रही हैं, वागे छे रे वागे छे, तेरी काया में घड़ियाल वागे छे, अस काया ने 9 दरवाजे, 10वें नित नित नौबत बाजे रे। तो क्लियर इंडिकेशन एक साधक को, एक सीकर को यहां से क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि ये जो हमारी काया है, इसके अंदर एक घड़ियाल बज रहा है, और 9 दरवाजों को अगर हम बंद करके 10वें पर अपना ध्यान लगाएं
और यहाँ पर आए तो यहाँ पर नित नित एक नौबत बज रही है और उसको हमने सुनना है। तो बहुत सुंदर, इवन बाइबल में आप जाएंगे, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, क्रिश्चियनिटी में अगर हम जाएं तो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको बहुत से रेफरेंस मिलेंगे जहां पर उन्होंने लोगोस शब्द का इस्तेमाल किया है। लोगोस इज लाइक कि वहां पर बार बार कह रहे हैं योर नेम विल बी डन, योर नेम विल बी डन, दाई नेम विल बी डन। सो ये नेम क्या है? नेम इज बेसिकली द यूनिवर्सल साउंड। अगर बाइबल में आप जाएंगे ओल्ड टेस्टमेंट में आपको बहुत जगह इस तरह की चीजें मिलेंगी। प्रभु का नाम हमारा सहारा है, प्रभु का शब्द हर तरफ व्याप्त है, प्रभु ने इस शब्द से कार्य संपन्न किए। तो हर जगह आप देखेंगे इस शब्द का, इस साउंड का जिक्र आएगा, ठीक। और अगर आप पारसी लोगों में चले जाएं तो उनका जो द गॉस्पेल ऑफ ज़रदुस्त्र है उसमें भी आप देखेंगे उन्होंने इस यूनिवर्सल साउंड को अहुनवेर्या कहा है। तो वहां पर उनके टेक्स्ट में बहुत जगह इस शब्द का इस्तेमाल होगा। दैट इज बेसिकली द यूनिवर्सल साउंड, द यूनिवर्सल एनर्जी। फिर जेन फकीरों के बारे में आपने सुना होगा। जो जेन मास्टर्स होते हैं उनके डिसाइपल जब भी उनके पास जाते थे तो वो कहते थे कि हमारी साधना क्या है, हम क्या करें? तो जेन मास्टर्स कहते थे सिट एंड लिसन द वन हैंड क्लैपिंग। और वो शिष्य परेशान हो जाते थे, बहुत समय वो ढूंढते रहते थे व्हाट इज दैट वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली है क्या? और फिर जब किसी को पकड़ में आता था, गुरु के साथ रहते 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 साधना करते करते एक दिन वो उस एक हाथ की ताली को सुन पाते थे। तो दिस एक हाथ की ताली इज लाइक यूनिवर्सल साउंड, अनहद नाद, अनाहत नाद। इवन अगर हम इस्लाम में भी चले जाएं तो जिसको हम कलमा कहते हैं, कलमा, तो बेसिकली इट इज जस्ट रिलेटेड विद दैट नाद, है ना। बुल्ले शाह हैं, यारी साहब हैं, अगर इनकी चीजें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे यारी साहब कहते हैं झिलमिल झिलमिल बरखे नूरा, रुंझुन रुंझुन अनहद बाजे, क्लियर इंडिकेशन। तो सूफीज्म में, इस्लाम में, मोस्टली सूफीज्म वाले सेक्ट में आप यूनिवर्सल साउंड के बहुत सारे रेफरेंसेस पाएंगे। और हमारा एक बहुत सुंदर मूवी का ही सॉन्ग है, बट इट हैज ग्रेट डेप्थ इन इट, जिसको आपने सुना भी होगा, कुन फाया कुन। कुन फाया कुन को जब आप सुनेंगे इस सॉन्ग को तो यू कैन इजिली रिलेट कि व्हाट इज साउंड, व्हाट इज निराकार, हाउ इट इज टेकिंग शेप। तो ब्यूटीफुल रेफरेंसेस आर गिवन ऑल द रिलीजन्स इन ऑल द स्क्रिप्चर्स। इवन जो हमारा विज्ञान भैरव तंत्र है, जो भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है, उसमें भगवान शिव भी माँ पार्वती को जो विधियां दे रहे हैं उसमें से बहुत सारी विधियां नाद से रिलेटेड है, बहुत सारी। अगर आप में से कुछ लोग इच्छुक हो, पढ़ना चाहें तो यू कैन जस्ट सॉर्ट इट आउट कि उसमें बहुत सारी विधियां नाद से रिलेटेड हैं। इवन हमारे योग शास्त्र में, योग में भी अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं उल्टे पवन षट चक्र भेदा, मेरु दंड सर पूरा, गगन गरजे मन सून समाना, बाजे अनहद तूरा। मीन्स कि जब हमारी रीढ़ सीधी होती है और हम बिल्कुल एक एक चक्र को भेदते हुए कुंडलनी ऊपर की ओर उठती है, जब ऊर्जा ऊपर फैलती है तो उस समय में अंदर जो है अनहद नाद का जो तूर है वो बजता है। तो योग भी इस बात की पुष्टि करता है। तो सारे स्क्रिप्चर्स, सारे सेक्ट्स जो हैं हमें बताते हैं कि ये अनहद नाद जो है हमारे भीतर ही है। और गोपीनाथ जी कविराज जो हैं एक बहुत ही तंत्रा सेक्ट जो है उसके बहुत बंगाल से बिलोंग करते हैं और तंत्रा सेक्ट के बहुत मशहूर, जो मैं कहूंगी कि वहां के साधक हैं। तो उन्होंने अपनी बुक में ये बहुत सुंदर, ये पिक्चर के साथ ये पूरी व्याख्या दी हुई है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक चक्र से जब हमारी कुंडलनी ऊपर उठती है, सहस्त्रार में जाती है, यू कैन सी माई कर्सर, और तब हमें कानों के माध्यम से जो है घंटे जैसी ध्वनि या अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देती है। और इस समय लिखा भी है जैसे कि प्राण स्थिर और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर जब प्रविष्ट होते हैं तो उस शून्य पथ से अनाहत ध्वनि का श्रवण होता है।
तो योग में, और इवन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपको पता है जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते, फिर हम लोग अजान पढ़ते हैं, इस्लाम में अजान है, सिखिज्म में जाएं तो कीर्तन है, ठीक है। फिर जैसे सिंगिंग बॉल, तिब्बतन जो होता है सिंगिंग बॉल जैसे होता है, मैंने एक जैसे आप सबने देखा ही होगा, बट इस तरह का एक सिंगिंग बॉल होता है और इससे हम इसको साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डमरू है, बंसी है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, बेसिक इसके पीछे जो है बेसिक रीजन क्या है कि हम बाहर की इस ध्वनि के पीछे जाते जाते, इससे कनेक्ट होते होते अंदर की ध्वनि से जुड़ जाएं। बेसिक रीजन ये है। बट हम क्या करते हैं, बाहर का कीर्तन करते हैं, बाहर की घंटी बजाते हैं, बाहर का डमरू बजाते हैं, बट भीतर उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। तो दिस इज अ ग्रेट इंडिकेशन कि बाहर के प्रतीकों को पकड़े और फिर वही प्रतीक हमारे अंदर भी है, ये साउंड हमारे अंदर भी है। तो बाहर की घंटी, बाहर की अजान, बाहर के कीर्तन से अंदर के अखंड कीर्तन तक जाना है, बाहर के अजान से अंदर की अजान तक आना है, बाहर की घंटी की ध्वनि से अंदर की ध्वनि तक आना है। दिस इज द इंडिकेशन बेसिकली, ठीक। अगर हम स्क्रिप्चर्स को, रिलीजन्स को छोड़ भी दें, अगर हम साइंटिफिक इशू पे आए तो बिग बैंग थ्योरी इज देयर। हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक बैंग हुआ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क एजेस आए, फिर धीरे धीरे कुछ स्टार अपीयर होने लगे, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, गैलेक्सीज बनी, मैटर बना, सोलर सिस्टम बना, धीरे धीरे प्लैनेट्स बने, अर्थ बनी। तो इस तरह से हम सब मानते हैं कि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि एक विस्फोट हुआ और फिर धीरे धीरे पदार्थ बना। तो बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो सेइंग दिस कि हाँ, एक बैंग से, एक ध्वनि से सब पैदा हुआ, और स्क्रिप्चर्स भी यही कह रहे हैं कि एक विस्फोट से, एक ध्वनि से सब पैदा हुआ। तो नाउ बेसिकली हमें क्या करना है, इस ध्यान की अवस्था में बेसिकली इस ध्वनि से कनेक्ट होना है। और ये ध्वनि ऐसा नहीं है कि आपने इसको सुन लिया या आप इस तक पहुंच गए तो कोई अचीवमेंट हो गई कि आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ अचीव कर लिया, नहीं। इट इज लाइक अ जंपिंग बोट। जब आप स्विमिंग के लिए आते हैं, आप जंपिंग बोट पे खड़े होते हैं, अपना बैलेंस बनाते हैं, एंड देन यू डीप डाइव। इट इज जस्ट लाइक अ जंपिंग बोर्ड कि आप उस ब्रिज पे आ गए। अब आपने अपने बॉडी, माइंड, इमोशन, फीलिंग्स, थिंकिंग, उन सारी पेरिफेरीज को छोड़ के नाउ यू आर विद योरसेल्फ। और जैसे ही आप थोड़ा सा अपना बैलेंस करेंगे, अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, और यू कैन जंप इनटू ध्यान। और फिर ध्यान से समाधि, समाधि से बिल्कुल एक शून्य, एक नथिंगनेस में आपका प्रवेश हो सकता है। तो इट इज लाइक कि आपने एक धागा पकड़ लिया और उससे आप अंदर जंप करने जा रहे हैं। इट इज नॉट लाइक एनी अचीवमेंट कि आपने सुन लिया तो बहुत बड़ा कुछ हो गया, नहीं। उसके साथ आपको अपना यम नियम का पालन करना, सोशल कोड का पालन करना, अपनी प्यूरिफिकेशन करना, कंटेम्पलेशन करना, ये सारी चीजें भी साथ में करनी होगी। बट बेसिकली नाद की जो साधना है बहुत सहज साधना है। आपको कुछ भी ज्यादा करना नहीं है, बस अपने साथ धीरे धीरे बैठते 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 आप धीरे धीरे उस साउंड से कनेक्ट हो सकते हैं। और बेसिकली इसके बेनिफिट क्या होंगे, ये आपको फिजिकली, जिन लोगों को नींद का इश्यू होता है, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, तो उनकी नींद धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। क्योंकि जब भी आप नाद से जुड़ते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं। नाद से जुड़ते ही आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, धीरे धीरे ये चीजें बहुत मिनिमाइज होने लगती हैं। तो आपको फिजिकल लेवल पे, आपको मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस कम होगा तो क्या होगा, इमोशनली यू आर बिकमिंग साउंड, एबल टू टेक डिसीजंस, एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, not expressing in much extensive manner. Now you are just trying to transform yourself. तो एक इमोशनल हेल्प मिलती है। और अगर आप इमोशनली साउंड है, इमोशनली बैलेंस है, तो
ऑटोमेटिकली naturally आपके social concerns better होंगे, socially you can evolve yourself, and no doubt कि नाद की साधना से spiritual benefit जो आपको मिलता है कि धीरे धीरे आप अपने ही अंदर grounded और centered होने लगते. You can just get the answer of most typical question of spirituality, that who am I? At that moment, you can get that answer, that who am I? So I am nothing but this universal sound. I am just a pure energy. I am resonating everywhere. So because we belong to Hinduism, so we are so much connected with the Om. So you must have heard the words omnipresent, omnisound, omniscient. What is it? Coming from Om means all pervading, omnipresent, all pervading, everywhere. So Nada means basically the universal sound or the basic vibrating energy of the universe from where we all are coming. And if we are just connecting with it, means we are connecting with our roots. And if we are connecting with our roots, so naturally the tree of life will be healthy, will be flourishing. So this is all about the Naad. And if we have 5 minutes. Yes, thank you, please. Okay. So we can do one practice. Okay, everyone just present over here, you can just close your eyes and just produce humming sound.